پچھلے دنوں جب یہ خبر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو سارے عالم اسلام پر ایک سناٹا چھا گیا۔ ایران کا آسمان، مشہد کا گنبد، قم کی فضا، تہران کی گلیاں، اصفہان کے مینار، شیراز کے گلستاں، سب سوگوار ہو گئے۔ ایک عہد تمام ہوا، ایک سورج غروب ہوا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا سورج واقعی غروب ہوتا ہے یا صرف افق سے اوجھل ہو کر کسی اور جہان کو روشنی دینے چلا جاتا ہے؟ آیت اللہ خامنائی کا جسم ہم سے جدا ہوا، لیکن ان کا پیغام، ان کی تحریک، ان کی شہادت، یہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں نقش ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے ایران کی، کیونکہ ایران صرف ایک ملک نہیں، ایران ایک تاریخ ہے، ایک تحریک ہے۔ ایران صرف ایک مذہب نہیں، ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں صدیوں کا سفر طے کرنا ہوگا۔ ہمیں کھنڈرات میں چھپی ہوئی ان داستانوں کو پڑھنا ہوگا جو آج کی ایران کی بنیاد ہے۔ ہمیں ان خون کے قطروں کو دیکھنا ہوگا جو اس سرزمین کی مٹی میں شامل ہیں۔ ہمیں ان آوازوں کو سننا ہوگا جو آج کی ایران کی فضا میں گونجتی ہیں۔ یہ تحریر ایران کے نام ہے، یہ تحریر ایرانی قوم کے نام ہے، یہ تحریر ان بے شمار شہداء کے نام ہے جنہوں نے خیرت اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اور سب سے بڑھ کر یہ تحریر ان تمام مظلوموں کے نام ہے جن کے لیے ایران آج بھی آواز اٹھا رہا ہے۔ یہ تحریر ان عقل مند کے نام ہے جو یورپ میں چند ناچنے والوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راہبر اسلام کی شہادت پر خوش ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس ویڈیو کو وائرل کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی بہت خوش ہیں۔ یہ تحریر ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایران کو نہیں سمجھتے، جو ایران کو صرف میڈیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ایران کو صرف مغربی پروپیگنڈے کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایران کی اصل روح کو محسوس کریں، اس قوم کے دکھ درد کو سمجھیں۔ ایران کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں صرف وہی تصویریں آتی ہیں جو مغربی میڈیا نے آپ کے ذہن نشین کر دی ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں صرف وہی خبریں گردش کرتی ہیں جو CNN، BBC، فرانس 24 اور دیگر چینلز آپ کو دکھاتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں صرف وہی تجزیے ہیں جو نام نہاد ماہرین آپ کو سمجھاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ ایران کو نہیں جانتے، آپ صرف ایک مصنوعی تصویر کو جانتے ہیں۔ ایران کو سمجھنے کے لیے آپ کو صدیوں پیچھے جانا ہوگا۔ ہخامنشی سلطنت، جس نے اس سرزمین کو دنیا کی پہلی سپر پاور بنا دیا تھا۔ سائرس اعظم نے نہ صرف ایک عظیم سلطنت قائم کی، بلکہ اس نے انسانی حقوق کا وہ منشور بھی تحریر کیا جسے آج بھی اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں نصب کیا گیا ہے۔ اس نے مذہبی رواداری کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اس نے فتح شدہ اقوام کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ اسے آزاد کرانے والا سمجھتی تھی، غلام بنانے والا نہیں۔ اس نے بابل کے یہودیوں کو قید سے آزاد کیا اور انہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت دی۔ اس نے ان کے معبد کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی فراہم کی۔ ساسانی سلطنت نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ اس نے نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ ثقافتی اور تہذیبی طور پر بھی ایران کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس نے ایران کی پہچان کو مزید مستحکم کیا۔ اس نے زرتشت مذہب کو سرپرستی دی۔ اس نے علم و دانش کی راہیں کھولی۔ اس نے فن و تعمیر کے شاہکار تخلیق کیے۔ اس نے تجارت و معیشت کو فروغ دیا۔ اس نے فوجی طاقت کو منظم کیا۔ اس نے ہمسایہ سلطنتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ پھر آیا اسلام کا سورج اور اس سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلی۔ فارس نے اسلام کو قبول کیا تو قبول کرنے والا بن کر نہیں بلکہ سنوارنے والا بن کر۔ اس نے اسلام کو اپنی عظمت دی۔ ایرانی اسلام نے دنیا کو وہ عظیم مفکرین دیے جن کی وجہ سے آج بھی علوم اسلامیہ زندہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا گھرانہ، امام بخاری کا وطن، امام مسلم کا مسکن، امام ترمذی کا مقام، امام نسائی کا نسب، امام ابو داؤد کا خاندان، امام ابن ماجہ کا شہر، یہ سب اس سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر وقت بدلا، صفوی خاندان نے اقتدار سنبھالا اور اس سرزمین کی تقدیر بدل دی۔ شاہ اسماعیل نے ایک نیا دور شروع کیا۔ اس نے ایران کو شیعہ مذہب کا گڑھ بنا دیا۔
ये तब्दीली रातों रात नहीं हुई। सदियों तक ईरान सुन्नी अक्सरियत वाला मुल्क रहा। इस तब्दीली में कितना लोगों का खून बहा, कितने ही उलमा को जलावतन किया गया, कितनी मसाजिद को नई तर्ज पर डाला गया, कितने शहर तबाह कर दिए गए। सफ़ियों ने ईरान को एक नई पहचान दी। उन्होंने ईरान को उस्मानी सल्तनत के मुकाबले में खड़ा किया और ईरान को शीयत के साथ जोड़ दिया। फिर आई काजार ख़ानदान की बेअमली और फिर पहलवी ख़ानदान की आमद। रज़ा शाह पहलवी ने ईरान को जदीद बनाने का बेड़ा उठाया, लेकिन उसकी जदीदियत मगरिब की अंधी तकलीद थी। उसने ईरान को मगरिब का गुलाम बनाने की कोशिश की। उसने ईरान के मज़हब को पसे पुश्त डालने की कोशिश की। ईरान के उलमा को कैद किया, ईरान के हिजाब को उतारा, ईरान की मसाजिद को बंद किया। रज़ा शाह ने ईरान का नाम बदलकर फ़ारिस से ईरान कर दिया। वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से मुतासिर था, जो तुर्की को सेकुलर बना रहा था। वो भी ईरान को वैसा ही बनाना चाहता था। वो मगरिब की तरक्की देखकर हैरान था और उसे लगता था कि तरक्की का वाहिद रास्ता मगरिब की पैरवी है। वो ये भूल गया कि ईरान की अपनी शनाख्त है। उसने ईरानी नौजवान नस्ल को मगरिब ज़दा बनाने की कोशिश की, लेकिन अवाम खामोश नहीं रहे। अवाम ने एहतजाज किया, बगावतें हुई, जेलें भरी, फांसियाँ पाईं, लेकिन ईरानियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने जद्दोजहद जारी रखी, इनकलाब का बीज बोए रखा। अवाम ने उस दिन का इंतज़ार किया जब वो अपनी इज्जत वापस ले सकेंगे। वो दिन 1979 में आया। वो दिन जब ईरान का अवाम उठ खड़ा हुआ। वो दिन जब जुल्म की दीवारें गिर गईं। वो दिन जब बातिल की हुकूमत ख़त्म हो गई। वो दिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने फतह पाई। इस इनकलाब की क़यादत एक अजीम मुज्तहिद बेमिसाल रहबर कर रहे थे, आयतुल्लाहिल उज़्मा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई ना कर सका। उन्होंने एक ऐसे बादशाह को निकाल बाहर किया जिसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल और पूरे मगरबी ब्लॉक की पुश्त पनाही हासिल थी। इमाम खुमैनी ने दुनिया को एक नया पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इस्लाम सियासत भी है। इस्लाम सिर्फ सुलह का नाम नहीं, इस्लाम जंग भी है। उनका नारा था, ला शर्क़ियता वला ग़रबियता, जमहूरियता इस्लामियता। ना मशरक़ी ना मगरबी, सिर्फ जमहूरी इस्लामी। उन्होंने ईरान को ना अमेरिका का एजेंट बनने दिया, ना सोवियत यूनियन का ग़ुलाम। उन्होंने ईरान को तीसरी दुनिया का रास्ता दिखाया। उन्होंने ईरान को गैर वाबस्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा किया। उनकी वफ़ात के बाद इनका मिशन रुका नहीं, उनका रास्ता ख़त्म नहीं हुआ। उनके बाद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ने रहबरी की ज़िम्मेदारी संभाली। वो इमाम खुमैनी के सच्चे जानशीन साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ इमाम के मिशन को जारी रखा, बल्कि उसे मज़ीद आगे बढ़ाया। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी की क़यादत में ईरान ने वो तरक्की की कि दुनिया हैरान रह गई। ईरान ने साइंस के मैदान में वो कामयाबियाँ हासिल की कि मगरबी ममालिक भी दंग रह गए। ईरान ने टेक्नोलॉजी के शोबे में वो इनकलाबात बर्पा किए कि आलमी ताकतें भी शिजदर रह गईं। ईरान ने दिफाई सनत में वो ताकत हासिल की कि इसराइल तक खौफज़दा हो गया। ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो महारत हासिल की कि अमेरिका तक परेशान हो गया। ईरान का फ़न तामीर दुनिया को हैरान कर देता है। अस्फ़ान की मसाजिद, शिराज की मसे, मशहद के गुंबद, कुम के मीनार, तेहरान के महल्लात, पर्सपोलिस के खंडरात, यज़्द के मीनार, काशान के घर, ये सब इस कौम की तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। ईरानी कालीन दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। ईरानी खत्ताती ने कुरान को जीनत बख्शी। ईरानी मीनातरी ने दास्तानों को रंग दिया। ईरानी खाने ने जायके को नया मानी दिया। ईरान के लोग कितने मेहमान नवाज हैं, यह आपको तब पता चलेगा जब आप किसी ईरानी के घर जाएंगे। वो आपको अपने घर का बादशाह बना देंगे। ईरान में ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है। ईरान में मजहबी रिवायात भी बहुत मजबूत हैं। मुहर्रम का महीना आते ही पूरा ईरान सोगवार हो जाता है। हर तरफ सियाह परचम लहरा रहे होते हैं। हर मस्जिद में ज़िक्र हुसैन हो रहा होता है। हर आंख अशबार होती है। आशूरा का दिन ईरान की सड़कों पर निकल आते हैं लाखों अफराद। सियाह पोश औरतें, सियाह लिबास मर्द, बच्चे भी इस सोग में शामिल। सब के सब इमाम हुसैन की मजलूमियत को याद कर रहे होते हैं। सब के सब करबला के वाक़े को दोहरा रहे होते हैं। ईरान के लोग अपने मज़हब से कितनी मोहब्बत करते हैं, यह आपको मशहद और कुम के मुक़द्दस शहरों में जाकर पता चलेगा। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। कुम में हज़रत मासूमा अलैहिस्सलाम का मज़ार है, जहाँ हर वक्त इबादत करने वालों का हुजूम रहता है। लोग दूर दराज से पैदल आते हैं। ईरान की एक और खूबी है इसका तालीमी निज़ाम। ईरान में शरह ख़ानदगी बहुत बुलंद है। ईरान में यूनिवर्सिटियाँ बेहतरीन हैं। ईरानी साइंसदान और इंजीनियर बहुत माहिर हैं। ईरानी साइंसदानों ने
नीनो टेक्नोलॉजी, स्टीम सेल रिसर्च, क्लोनिंग, कैंसर के इलाज, दिल की बीमारियों, दिमागी अमराज और बहुत से शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। ईरान की मईशत पर बात करें तो इस पर पाबंदियों के बावजूद वो तरक्की कर रही है। ईरान तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर रखता है। ईरान पस्ता, ज़ाफ़रान, अनार, खजूर, अंजीर, संतरी, सेब, अंगूर और दीगर फलों की पैदावार में दुनिया में नुमाया मकाम रखता है। ईरान का कालीन, ईरान का हाथ से बनाया हुआ सामान, ईरान का चमड़े का काम, ईरान का धात का काम, ईरान का मिट्टी के बर्तनों का काम, ये सब दुनिया भर में मशहूर है। ईरान की सनतों में स्टील, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, दवासाजी, टेक्सटाइल, तामीराती मवाद, खाने की अशिया, मशीनरी, बरती आलात और बहुत कुछ शामिल है। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी खूबी इसका सियासी निज़ाम है। ईरान का सियासी निज़ाम दुनिया का मुनफरिद निज़ाम है। ये जमहूरिया भी है और इस्लामी भी। ये अवाम की हुकूमत भी है और खुदा की हुकूमत भी। ईरान की खारजा पॉलिसी पर बात करें तो इसका मरकज़ी नुक्ता इस्तिकबार के खिलाफ मुज़ाहिमत है। ईरान अमरीका को अज़ीमुश शैतान कहता है। ईरान इसराइल को सहयूनी हुकूमत कहता है और इसे तस्लीम नहीं करता। आज आयतुल्लाह खामिनाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मिशन जारी है। उनके बैक भी ईरान जिंदा है, उनके बाद भी इनकलाब जिंदा है। ये ईरान है, ये इसकी कहानी है, ये इसका माजी है, ये इसका हाल है, ये इसका मुस्तकबिल है, ये इसका पैगाम है, ये इसका मकसद है, ये इसकी मंजिल है, ये इसका रास्ता है, ये इसका सफ़र है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ईरान को इसकी असल शक्ल में देखें, ईरान को इसकी असल रोशनी में परखें, ईरान को इसकी असल हकीकत में समझें, ईरान को इसकी असल रूह में महसूस करें, ईरान को इसकी असल शनाख्त में पहचानें, ईरान को इसकी असल इज्जत में जानें, ईरान को इसकी असल ताकत में देखें, ईरान को इसकी असल खूबसूरती में देखें। और याद रखें, ईरान तन्हा नहीं है, ईरान के साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा है नाम नेहाद मुसलत किए गए नाम के मुस्लिम लीडर और उनके उलमा नहीं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईरान की हिफाजत फरमाए और ईरानियों को गैरत व हमीयत में बेमिसाल बनाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।